Hi, welcome back to my channel. This is Anuya, and after a long time, I'm making a video come back on this channel. So let me introduce myself. I'm a tarot card reader and professionally working on AstroTalk. You can find my AstroTalk by the name of Anuya. This is my, you can book a one-on-one consultation there also. Plus, this is my Instagram handle by Meera Swara 777 Anhuya. And I'm really actively posting daily videos there, various topic short videos, and you can directly book a consultation by DM me through this page. So yeah, let's start with this video. So a thumbnail so you get to know this video is going to be about you next in love. So basically single women, single men who are like wanted to see, who are curious what they're for you next in love. Also, if you are committed, if you are in relationship, you can watch this video as well, because हमें generally देख रहे हैं कि like after this stage what is there for you next in love. So if this is going to be a general reading, short and general reading, I video resonates with few sets of people, like few audience, like limit. So let's see what, and also at last हम hidden true love messages निकालेंगे from your soulmate, from your future partner, उनकी energies आपके towards, like उनके messages क्या हो सकते हैं आपको लेके. So start with any shift you will notice before entering this person. आपकी लाइफ में क्या shift आ सकता है, any changes, anything, so situation you will going through. Let's see, any shift. I got Page of Cups, I got Three of Swords, and then get one last card, this Judgment का card है, and the Hanged Man, the bottom of deck. For many of you, what I feel, आप लोग हो सकता है कि कैजुअल चीज़ों पे अपने आप को अब तंग आ चुके हो, कैजुअल चीज़ों को एंटरटेन करते करते, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है यू आर वेरी क्यूरियस. अब अपनी लाइफ में यू विल बी लाइक ओके मुझे एक्सप्लोर करना है, आई डोंट वांट कमिटमेंट, लेट्स सी. थोड़ा लाइक आपका एक बिलीव सिस्टम हो गया होगा कि द काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी आई वॉन्ट इन माई लाइफ ऐसा है ही नहीं, और आजकल सब कैजुअल सिचुएशनशिप्स में ही चलते हैं. सो वाई नॉट ट्राई दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स, आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर. एंड सो आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके मन में आएगी, बट इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनी वेयर. ठीक है, ये करंट सिचुएशन भी हो सकती है कि आफ्टर टॉकिंग टू 2-3 पीपल्स यू फील लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट, दिस इज आई एम नॉट मेंट फॉर कैजुअल, आई एम नॉट मेंट फॉर फ्लर्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. एंड आई सी यू इन अ वेरी हार्ट ब्रोकन स्टेज. आपका हार्ट ब्रोकन होगा, आप एक डिफरेंट डायरेक्शन, द पर्सन यू आर, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, आप थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे जो कि आप नहीं हो, एंड यू विल गेट बिट्रेल. आपको वहाँ से बिट्रेल मिलेगा, आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा. देर इज़ अ लॉट ऑफ फॉगीनेस, आपको बहुत क्लैरिटी नहीं होगी, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट शुड आई डू, शुड आई ट्रस्ट और नॉट. देर इज़ अ लॉट ऑफ, आपको कन्फ्यूजन से बहुत गुजरना पड़ेगा. एंड देर इज़ अ इनर कॉलिंग इनसाइड यू कि नो, दैट्स इनफ. अब मैं अपने सोलो पे चलने वाली हूँ. अगर मुझे पूरी लाइफ टाइम सिंगल रहना पड़ सकता है, सो आई एम ओके with being single rather than entertaining such kind of relationships in my life, such kind of energy, casual and this unserious people who are lusting over me, people who just entertain me just because they are free. And you know, आपको अपनी self worth समझ में आएगी. I see a strong judgment call inside you. You started noticing like something is wrong within me, like what is wrong, why I am attracting this kind of pattern again and again in my life. यही पैटर्न बार बार क्यों रिपीट हो रहा है. एंड देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ दैट आई नीड टू करेक्ट माई लाइफ स्टाइल, आई नीड टू करेक्ट समथिंग साइकोलॉजी, आई नीड टू करेक्ट समथिंग विद इन मी which is not working in my favor. Why these people are getting this energies from me that they can take me casually. Yeah, this is what I feel. And you are starting doing corrections in your life. पास्ट की चीज़ों का आप शायद स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. यू स्टार्टेड डूइंग जर्नलिंग एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल. आप सेशंस ले सकते हो लोगों से. यू वांट टू टॉक डीप अबाउट योर डीप रूटेड इशूज, लाइक व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग. देयर विल बी अ स्टेज जहाँ ये अभी करंट सिचुएशन भी हो सकती है. मे बी यू आर डीलिंग विद दिस थिंग दैट यू आर लाइक इनफ इज़ इनफ. नाउ आई वांट टू सी लाइक why what is within me
like it's something within me is not working out, like I need to give myself another chance in relationships. So you will feel like, okay, I need to give myself a relationship. For many of you this is also what I am feeling कि आपका कोई past का connection आपके life में वापस आ सकता है, and just after जिसने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दी है, आफ्टर एंटरटेनिंग दिस पर्सन लास्ट टाइम, दिस विल बी द लास्ट कॉल होगा, देन यू विल लाइक ओके फाइन, नो मीन्स नो, दिस इज़ इनफ, लाइक अब नहीं हो सकता. अभी अगर आप में वो इमेच्योरिटी भी रही होगी ना, थोड़ा सा भी अपने पास्ट कनेक्शंस को लेके वो इमेच्योर फीलिंग्स भी रही होगी ना, वो भी वो एक लास्ट अटेम्प्ट के बाद, आई सी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया आपका किसी पर्सन के साथ, तो वो वापस आएगा और वो आपको प्रूव कराएगा कि वाई यू शुड नॉट चूज़ देम एंड वाई यू शुड सी योर सेल्फ वर्थ एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. समटाइम क्लोजर किसी इंसान के आने से नहीं होता, समटाइम क्लोजर इज़ लाइक योर डीप इनर रियलाइजेशन होगा आपको. सो आई सी देयर इज़ अ डीप इनर रियलाइजेशन आपको आ रहा है आफ्टर बीइंग स्टक्ड, आफ्टर बीइंग, आई सी लाइक एक सिचुएशन में यू फील लाइक स्टक, इस चीज़ में कुछ हो नहीं रहा है, यू फील वेरी स्टैग्नेटेड, यू नो दिस इज़ द सिचुएशन दैट आई एम सीइंग बिफोर एंटरिंग दिस पर्सन. आप इस सिचुएशन से गुजरोगे एंड आफ्टर दिस थिंग्स इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली इन योर लाइफ. बट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग, लाइक योर फ्यूचर पार्टनर, लाइक यू नेक्स्ट इन लव. द स्ट्रेंथ कार्ड आया है, गिर गया है. Let's see, you next in love, you next in love. See, bottom of deck is Knight of Cups. So जिन्होंने टैरो पढ़ा है, जिनको पता है, this card is basically talks about like romance. Someone is entering in your life, like someone is offering a romantic connection, generous, sensitive, you know, this kind of emotions, love is arriving in your door. So I feel you next in your love, I feel you will be very more clear about your boundaries, you are more clear about what you exactly looking forward for a person. आपका बहुत ही ये यहाँ पे मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ curiosity, there is a lot of questions. जब आप इस इंसान के साथ रहोगे, you sometimes more about curiosity, this is more about you want to know like what is going on, like what is going to happen next in this connection. And I see there is a very blunt communication between you and your partner. Things are not going to be decisive and unclear, although एक person हो सकता है जो थोड़ा सा you know डुअल पर्सनालिटी रह सकता है, लाइक बताता दिखाता कुछ और है और एक्शंस कुछ और है. दिस कुड बी यू, दिस कुड बी दिस पर्सन, हम चेक कर लेंगे. बट आई सी मेजरली आई फील दैट देर इज़ ए वेरी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन. यहाँ पे चीज़ें क्लियरिटी से शुरू होगी, यहाँ पे कोई अनकैजुअल चीज़ें नहीं दिख रही है. ऑल्सो आई फील समटाइम्स फॉर मैनी ऑफ यू ये पर्सन को थोड़ा सा मेच्योर होने की ज़रूरत है. अगर ये आपकी एनर्जी भी है ना, सो आई थिंक आपको थोड़ा मेच्योर होने की भी ज़रूरत है. आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, ना कि अपने ज़िद से पकड़ के चीज़ों को एंटरटेन करनी है. ओके, विद द हैंग्ड मैन आई फील देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट इन योर लाइफ, लाइक यू आर गोइंग टू डेट समवन, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, जिसके बारे में सोचा नहीं है. And this is the entire different kind of personality. Yeah, let's see more. What is there next in this next love you are entering? What is there more? The sun. I see very youthful energy. I feel very vibrant energy. यहाँ पे youthful के दो कार्ड्स आए हैं. अगर ये पर्सन एजड भी हुआ ना आपसे, देयर इज़ अ वेरी यंग एनर्जेटिक यूथफुल एनर्जी समथिंग विद इन दिस पर्सन. लाइक इसका फेस बहुत ग्लो करता है, इसका फेस बहुत वाइब्रेंट रहता है, वेरी वेरी वाइब्रेंट फीचर्स है इसके, ब्राइट फीचर्स है, लाइक बिग स्माइल है इसकी. देयर इज़ लाइक बहुत अच्छे टीथ मुझे अलाइंड दिख रहे हैं. देयर इज़ अ ब्राइट आईज, वेरी वेरी क्रियोसिटी, लाइक आपका जो एक क्रियोसिटी मर गया था ना एक रिलेशनशिप में,
वो सब वापस आई फील लाइक अ टिंग्लिश इन योर स्टमक एंड यू फील लाइक ओके माई गॉड, लाइक समथिंग लाइक दिस द एक्साइटमेंट इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, द स्पार्क इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस होने वाला है। सो इफ़ यू समवन जिसने अपना इनर चाइल्ड बहुत मारा है, अपना रियल सेल्फ मारा है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर, इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लाइक डिग इन टू योर इनर चाइल्ड। ये आपसे क्वेश्चन करेगा, इतने क्वेश्चन करेगा जो आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि ओके मेरे बारे में कोई इतना क्वेश्चन कर सकता है। आपको खुद आप यू विल बी मोर क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ कि ओके आई वॉन्ट टू नो अबाउट मोर। आप अपने आप को लेके और ज़्यादा क्यूरियस इंटरेस्टेड हो जाओगे दैट आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि ये इंसान भी इंटरेस्टेड है। सो आपके इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा अलाइन कराने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू वेरी वेरी वाइब्रेंट, वेरी वेरी लाइक ये कनेक्शन के साथ बहुत घूमना फिरना भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन आपका इनिशियल डेज बहुत घूमना फिरना, यू गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक वेरी दुनिया के बारे में, इनके बारे में, लाइकनेस, डिसलाइक्स। लेट्स सी मोर the personality he and she is likely to be, like what kind of a personality he and she is likely to be. Give me one card. See Ace of Cups, like full of emotions, there is a lot of emotion, there is a lot of emotional depthness. This person is ready for new connection. आप हो या ना हो, this person is ready for new connection. This person is wanted to welcome you, आपको एकदम तैयार है। This person is sensitive, इमोशनली सेंसिटिव। ये पर्सन हीलर भी हो सकता है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू वाटर प्लेसमेंट हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है। देयर इज़ अ डीप कनेक्शन विद वाटर। इसको पानी के साथ रहना अच्छा लग सकता है, या पानी इसको बहुत रिचार्ज करता है या करती है। या दिस इज़ गोइंग टू बी अ गॉड गिफ्टेड कनेक्शन। सी एस ऑफ कप्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब हमने सीखा था टैरो, सो हमको बताया था लाइक गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप, लाइक गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी, लाइक जो आपको एंजल्स ला के दे रहे हैं। द हैंड इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, इज द हैंड्स ऑफ एंजल, दिस इज द हैंड्स ऑफ गॉड। एंड ये आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में इतना लव पोर करने वाला है। दिस आई फील दिस कनेक्शन इज, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ इमोशंस। ये सिर्फ इमोशंस के बारे में बात करता है, इमोशंस की बहुत वैल्यू करता है। प्रैक्टिकल है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है मेरे पास यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है। सो देयर इज़ अ यहाँ पे प्रैक्टिकल है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन है, बट इसके लिए इमोशंस बहुत वैल्यू करते हैं। इमोशन एंड प्रैक्टिकल माइंड का बहुत ही परफेक्टली ब्लेंडेड पर्सन है ये। यस, लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन, लाइक एनीथिंग दैट यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट दिस पर्सन, एनीथिंग। You can book your personal reading as well to see your personalized reading. See, Wheel of Fortune is something like, is a very strong card for me. This person आपको बहुत sudden मिलेगा, sudden interact करेगा, and you will feel like this person, this connection is destined to be. It was written, it was already written. मुझे बहुत एसेस और 10 और नंबर 1 के कार्ड आए हैं। सो डेफिनेटली आपका एक साइकिल लाइफ का एंड हो रहा है, तभी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। आप कोई अनफिनिश्ड बिजनेस अपने साथ लेके नहीं चल रहे हो, आपके पास कोई होप नहीं है, आपका कोई क्रश नहीं है। इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी लर्नड योर लेसन, पास लेसन आपका पूरा कंप्लीटेड है एक चैप्टर, तभी आप ये इंसान के पास आ रहे हो। बिकॉज ये तभी आ रहा है जब आप पूरे के पूरे हील्ड हो, यू आर रेडी फॉर एक्सेप्टिंग न्यू लव्स, और आपका पास्ट कनेक्शन के साथ कोई इमोशंस नहीं है। जो भी आपके ट्रॉमास थे, आपने उनको हील किया है, आपने उन पे काम किया है, ठीक है। क्योंकि वो जो कार्ड पहले बताया था ना, जजमेंट का कार्ड था, दैट इनर रिकॉल, इनर कॉलिंग जो आपकी आ रही थी, आपने खुद पे वर्क किया है एज अ पर्सन, या टू गेट। ये इंसान बहुत ट्रैवल फ्रीक भी हो सकता है, इसको ट्रैवल की बहुत नॉलेज है, उसको दुनिया की बहुत नॉलेज है, या तो इसने अपने लाइफ टाइम में बहुत ट्रैवल किया है, या डिफेंस में, या समथिंग। हर एक मोमेंट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है इस पर्सन के साथ। या यू कैन जज कि अब ये इंसान क्या करने वाला है, अब सिचुएशंस क्या होने वाली है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लाइक इसको हम लक का कार्ड भी बोलते हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक इन योर लाइफ। या लेट्स सी मोर, let's see one last card.
The Chariot and the Ten of Pentacles. Oh my God, this person, once this person commits, there is no going back. This person is very responsible, spiritual person है, highly intuitive है. With the Ten of Pentacles, I feel this person is very family oriented. इसके goals है, इसके life में बहुत goals है. I feel आपसे मिलने से पहले इसका goal है to build his own asset. अगर इसका खुद का asset है तो उस चीज़ को for him or for her is like first priority is like सिक्योरिटी, ठीक है, एंड फैमिली. दिस इज़ दी थिंग जो जिस पे काम करना चाहता है और काम करनी चाहती है. बहुत तजुर्बा है इसको लाइफ का. या तो ये बहुत ओल्ड स्कूल है, ठीक है, इसका सोल इतना ओल्ड है, इतने बर्थ ले चुका है, वो नॉलेज वो ये लेके चल रहा है या चल रही है. सो या दिस इज़ ऑल आई कैन से फॉर नाउ बिकॉज ये बहुत शॉर्ट रीडिंग करनी थी मुझे. बट एट लास्ट let's see any hidden messages, like anything that this person wants to convey you from this card, like anything, any message. आपका connection इसके साथ कैसा होने वाला है. yeah, so एक कार्ड गिरा है, इसमें लिखा है I feel unexplainable bond with you. oh my God, this person genuinely feels like there's something like he cannot express, like something beyond explanation, beyond imagination is something, कुछ ऐसा हो गया है. Let's see one more. You inspire me to be my best self. आप कहीं ना कहीं उसको बहुत इंस्पिरेशन देने वाले हो. एंड आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आप लोग काफ़ी एक दूसरे के लव का फैक्टर रहोगे और आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बहुत क्यूरियोसिटी पर्सन है. आपकी खुद को लेकर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ने वाली है, इसकी भी खुद को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ यू. यू आर द काम इन माई स्टॉर्म. सो यू आर गोइंग टू बी अ काम इन दिस पर्सन लाइफ. यू आर द कामिंग सोर्स, यू आर द कम्फर्ट जोन. आपके साथ उसको बहुत ज़्यादा दैट नर्चरिंग एनर्जी मिलने वाली है. सो या दिस इज़ ऑल for today's. Let me know how you like the video. Let me know how any topic you want to suggest in comment section. Definitely I will look after that.